lady who has inquired about the probable date of her marriage. Now, in order to analyze this chart, first of all, I would like to tell you that if you just look into this chart and the significations of all the planets, what you find is that at the involvement level, either 5 alone is involved, or 5 and 7 are involved, or 5, 7, 11 are involved. And then at the same time, the commitment is either by 5, 7, or by 11, or by 7, 11. And the final confirmation in majority of the planets is by 5, 11, or it is 5, 7, and 11. Now, what does this mean? What does this mean? When you have a chart like this, where there is involvement of 5, or involvement of 5 and 7, or involvement of 5, 7, and 11, and then at the commitment level, you are having 5, 11, or it is 5, 7, 11, or it is 7, 11, or it is 5 alone, then it clearly indicates that the native in question is in a love affair, and she is asking about the probability whether her love affair will be converted or changed into marriage or not. So, in order to check in a chart whether it's a case of love marriage or it's a case of arranged marriage, now in the case of marriage, what we have discussed so far, number of times we have discussed that we have the primary house is 7 and the supporting house are 5 and 11. Apart from this, 3 and 9, they are also the supporting houses. Now, the event of marriage can happen if there is involvement of 7, commitment by 5, 11, or there is involvement of 7, commitment by 5 or 7 or 11, or there is involvement of 5 and commitment by 7 or 11, or there is involvement of 5, 11, and commitment by 7. Now, this is all what we have discussed. This is a general discussion about that whether the marriage is likely to happen or not. Now, here when we talk about marriage, we have two different cases to be discussed. The first is whether it is going to be an arranged marriage or it is going to be a love marriage. Now, for the case of arranged marriage, the primary house, as I have already discussed with you, is the seventh cusp. So, the involvement of 7 or the involvement of 7, 11, or the involvement of 5, 7, and 11, and then the final commitment by 7 or 11 or 5, 7, 11 or 5, 7. Now, along with 4 and 9, that would clearly indicate that the person is likely to undergo an arranged marriage. So, involvement of 7, commitment by 5 or 7 or 11, or commitment by 5, 7, or commitment by 5, 7, 11, along with 4 and 9, clearly indicates that this is a case of arranged marriage. Also, it can be involvement of 7, 4, and 9, and commitment by 5 or 7 or 11 is again a case where you can say that it's a clear cut case of arranged marriage. Now, fourth cusp and ninth cusp, they are important in such cases. Fourth refers to mother, ninth refers to father. So, arranged marriage has to be through the parents, which involves the mother as well as the father. That is why the importance is given to cusp 4 and cusp 9 when we are talking about the arranged marriage. Now, if on the contrary, if we are having a case of love marriage, then what is important? In the case of love marriage, the involvement has to be by 5. The appearance of 5 at the involvement level is very, very important. Now, it can be 5 alone, it can be 5, 11, it can be 5, 7, 11. Either of these three combinations. And then at the commitment level,
If it is 5, then the commitment is 7, 11, or the commitment is 5, 7, and 11, right? Or if it is 5 and 7, then the commitment is again by 5, 11. So the combinations have to be like that, that involvement has to be in all cases by the fifth cusp, and the commitment has to be by 5 or 7 or 11. Now if 5 is involving all alone, then the commitment has to be by 7 and 11. Only then it can change into a marriage. If the involvement is by 5 and the commitment is by 11, then it simply means a case of love affair where it will not end up into a marriage. So, involvement of 5, commitment by 5 and 7, commitment by 5, 7, 11, commitment by 7, 11 would mean that the person is having a love affair, and that will eventually change into the marriage. Is it okay, please? Is it okay? Anil? Okay, sir. Okay. Okay, sir. Now, in the present case, if you look at in the present case, if you look at all the planets, all the 9 planets that we have with us, starting from Sun right up to Ketu. Now look here. If you look at the significations of the different planets, one thing more, speed तो ज़्यादा नहीं है. नहीं सर, you're fine sir. मेरी बोलने की स्पीड तो ज़्यादा नहीं है. नहीं सर, नहीं सही है सर, नहीं है सर. ओके, कन्वीनियंट है ना, तो बीच बीच में मैं हिंदी में भी बोलता रहूंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, नाउ if you look at the significations of all the 9 planets that we have with us, look at Sun, is a significator of second cusp, sixth cusp, 12th and 11th. Sir, Madhu is asking to join, sir. Okay. Okay, sir. Now, if you look at Sun, the planet Sun is in the star of Jupiter, is in the sub of Saturn, and is in the sub of Rahu. Sun has got a PS posited in 11th cusp, so it means it is giving significations of 11. Besides 11, it is not giving signification of any other cusp, neither 5 nor 7 nor 3 nor 9. And then Sun is in the star of Jupiter, and if you look at the significations of Jupiter, Jupiter is co-ruler of 3rd, 6th, 9th, 12th, along with 5th. It's a co-ruler of 3, 6, 9, 12, and 5. It means if I simply look at the important cusps which are required for the event of marriage, then Sun is giving me 11. It is 11th virtual sub-sublord, and Jupiter, represents Ketu, and Ketu is virtual sub-sublord of 5th cusp, and it has a PS. So thereby the involvement is by 5 and 11. The sublord Saturn, if you look at the significations of Saturn, it is present in 5th cusp, 5th star sub-sublord. Then it is present in 7th cusp, 7th sign lord. Then it is present as sub-sublord of 11th cusp. So the involvement is of 5 and 11, and the commitment is by 5, 7, 11, is indicating that there is a love affair which is going on. If we look at only this planet and up into a marriage, and if you look at the final confirmation through Rahu is present in 11, virtual sub-sublord of 11, and through Mercury, because Rahu represents Mercury, and through Mercury, it is linked to 5th and 11th cusp. Mercury is present as 5th star lord, and then at the same time, Mercury is the virtual sub-sublord of 11th cusp, and it has a PS.
So if you look at this planet, then Rahu gives me significations of only two cusps, which is 5 and 11. So if you sum up the significations of Sun, it involves 5 and 11, commits through 5, 7 and 11, and eventually finally confirms through 5 and 11. Similarly, if you look at Moon through Mars will involve 5, 7, 11, and Moon itself is the star lord of third cusp, so it only commits through the third cusp. Third cusp is a positive cusp, so we will consider it to be okay. And then final sub-sublord, that is Venus, and Venus here, you know, it will give only significations of 11th cusp because it is 11th sign lord. So here also Moon is involving 5, 7 and 11, committing through third, that is negotiation through the native, and final confirmation through 11 is again giving an indication that this is a case of love marriage. Similarly, look at Mars. Mars involves 5, 7, 11, commits through 11, and finally confirms through 5 and 11. Again indicates is a case of love marriage. Similarly, Mercury involves 5 and 11, 5, 7 and 11, commits through 5th, and then finally confirms through 5 and 11. Look at Jupiter. It involves 5, 7, 11, commits through 11, and then finally confirms through 5 and 11. Look at Venus. It involves 7 and 11. Now, this is the only planet which is not favoring a love marriage. It is favoring an arranged marriage. So it is involving 7 and 11 and committing through 5, and then eventually finally confirming through 5, 7 and 11. Look at Saturn. Involves 5, 7, 11, commits through 5, 7, 11, final confirmation through 5 and 11. Look at Rahu. Involves 5 and 11, commits through 5, 7, 11, finally confirms through 5. Look at Ketu. Ketu is not a significator of marriage. It simply is giving us an indication of a love affair which is between the two parties because it is involving 5 and 11. Now, if because Ketu is in Ketu sub, so I can just club Ketu and Ketu. So the sublord here will be taken as the star lord. So it will be the significations of Ketu will be given by Mercury, Mars, and Ketu. And if you look at Mercury, Mars, and Ketu, Mercury gives me 5 and 11, Mars 5, 7, and 11, and Ketu again finally confirms through 5th. So what do I mean to say by giving you the significations of all the planets is that if you look at this particular chart, then it is a very strong case of love marriage. So the native is having a love affair, and she is probably asking a question that when her marriage is likely to commence, or whether her marriage, the love will be converted into marriage or not. And I can say with surety that this particular love affair will end up into a marriage. Is this point clear, please? सर कपिल जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, साथ साथ पूछते रहिए क्वेश्चन. सर ये वाला ये अरेंज मैरिज के लिए 5-7-11 है, मैरिज के लिए. किसमें? मैरिज के लिए, मैरिज फॉर द अरेंज हाँ. मैरिज. हाँ. 5, 7, 11 along with 4 and 9. Yes, and love marriage also having the 5-7-11. Is it right? How do you define? See, look here. What I am telling is involvement by 5. Yes, sir. Or involvement by 5, 11. Or involvement of 5, 7, 11. Yes, sir. 3 cases. Yeah. Commitment by 7, 11. Yes, sir. Commitment by 5, 7, 11. Yes, sir. And commitment by 5, 11. Yes, sir. Okay. So Yes, if you look sir. into these combinations, then it clearly indicates that the case is, it's a strong case of love affair between the two parties. This arranged marriage also, you are having the same combination. Is it right? Yes. Which Then for which case? how do you differentiate? वही तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. आप देखिए इसको
मेरा बेसिक पॉइंट क्या है कि इन्वॉल्वमेंट लेवल पे 5 का होना जरूरी है। अच्छा, अगर इन्वॉल्वमेंट लेवल पे सिर्फ 7 अपीयर होगा, 5 अपीयर नहीं होगा, तो फिर 7 का इन्वॉल्वमेंट 5 से कमिटमेंट, 7 का इन्वॉल्वमेंट 5 11 से कमिटमेंट, तो along with 4 and 9 it's a case of arranged marriage. अच्छा, that's why you Yes. saying this Venus is not supporting for love marriage हाँ, वीनस नहीं सपोर्ट करता। because it is not showing the involvement in the 5. यस, इन्वॉल्वमेंट okay. ऑफ 5 इज ए मस्ट। यहाँ पे इनडायरेक्ट लिंकेज नहीं चलेगा, because अच्छा, what we are doing here is we are specifically identifying the two cases. Generally marriage तो हम कुछ भी ले लेते हैं, 5 और 7 और 11, and then if it is 5 then commitment has to be 7. If it is 7 the commitment has to be 5 or 11 or 7. If it is 5, 7 and 11 the commitment can be by 5 or by 7 or by 11. almost all planets having the 5 7, sir. हाँ, 5 में इन्वॉल्वमेंट है सब प्लैनेट्स का। देखो आप, सन का 11 का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जुपिटर के स्टार में है, इसीलिए दोनों को क्लब कर देंगे। सन को पीएस है तो इन्वॉल्वमेंट किसका हो गया? 5 11। मून को देखो, मार्स के स्टार में पड़ा हुआ है, मून को पीएस नहीं है, इसीलिए ये 5 7 11 है इन्वॉल्वमेंट। मार्स को देखो, मार्स जो है it is Yes. having a PS, it is 5 7 and 11, and if you look here 4 भी है इसमें, मार्स में 4 भी है, लेकिन 9 का एब्सेंस है, 9 का एब्सेंस है। ओके, Yes, sir. 9 का एब्सेंस है, राइट। एंड देन इफ यू लुक एट मरकरी, मरकरी में क्या है? मरकरी इज 5 and 11, Yes, sir. मरकरी एस PS, Yes, sir. Yes, sir. मरकरी 5th का स्टार लॉर्ड है और 11th का वर्चुअल सब लॉर्ड है। 5 and 11, Yes, sir. Yes, sir. it's not a co-ruler of any other favorable cusp, right? Yes, So sir. it is 5 and 11 Mercury, and then through Ketu is 5, because Ketu is present in 5, and it is not giving any other signification in the entire chart. केतु 5 की पोजीशन दे रहा है। एक तो चार्ट में किसी भी कस्प के अंदर कोरूलर नहीं है केतु, except that it is posted in 5th cusp and it has a PS, so we have to take this into account, right? ऐसे ही सारे प्लैनेट्स देखोगे आप तो सबका इन्वॉल्वमेंट 5 में है और कमिटमेंट 7 11 है या 5 7 11 है या 5 11 है। अगर 5 का इन्वॉल्वमेंट हो और 5 11 का कमिटमेंट हो, then that particular planet is only favoring a love affair between the two persons, but it may not finally change into marriage, because it simply means love marriage, it simply means love affair, and it will not materialize into a marriage. तो 5 के साथ 7 होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? Yes, sir. एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। पांच का इन्वॉल्वमेंट, 5 7 से कमिटमेंट, 5 7 11 से कमिटमेंट, 7 11 से कमिटमेंट मींस ही इज ए केस ऑफ लव अफेयर। 5 अगर इन्वॉल्वमेंट में आ जाए तो क्लियर इंडिकेशन है, और You यहाँ say, तो sir, सारे sir, प्लैनेट्स में ही completely. है। हाँ जी, Completely. Can you say this is the primary cusp is 5 for the for love marriage? love affairs the primary cusp is 5, अच्छा, for marriage the primary cusp is 7। 5 की बहुत सारी सिग्निफिकेशन है ना, yes, sir. ठीक है ना। लव अफेयर्स के लिए 5th इज द प्राइमरी कस्प। ओके, Okay, sir. अब आप देखो 5th का, आप देखो इसका असेंडेंट सब लॉर्ड देखो, असेंडेंट सब लॉर्ड मार्स है। बिफोर गोइंग इनटू अदर डिटेल्स, यू नो कि इस नेटिव का बिहेवियर कैसा होगा। असेंडेंट सब लॉर्ड इज मार्स,
Yes, sir. Mars is giving me 5, 7, 11. Mars is present in the star of Mercury, which is giving me 5, 11, and it is giving confirmation through Sun, which is giving only 11, and then final confirmation through Mercury, which is giving 5, 11. इसका मतलब sir. मार्स जो है असेंडेंट का जो सब लॉर्ड है वो भी शो करता है कि इस लेडी का एट ए लेटर स्टेज मे एंटर इनटू ए लव अफेयर। अब देखो, अगर वैदिक में देखेंगे हम, अगर मार्स और वीनस का कंजंक्शन हो जाए, राइट, Yes, sir. या मार्स को वीनस पे एस्पेक्ट हो और वीनस का मार्स पे एस्पेक्ट हो, ओके, Yes, sir. तो इट्स ए केस ऑफ लव अफेयर। ऐसे पर्सन्स का लव मैरिज ही होता है। और इस चार्ट में देखो ये भी दिखता है, मार्स इज in the Rashi chart, Mars is present in the 5th cusp, Venus and Saturn are in the 11th cusp, so Mars is aspecting Venus and Venus is aspecting Mars, is a strong case of love affair. Any more questions please? ये वैवाहिक जीवित कैसा होगा सर? ये वाला लव मैरिज होने से हाँ जी, हो गया लव मैरिज हो गया, वैवाहिक अभी जीवित कैसा होने का चांसेस है? इफ देयर इज ए चांसेस टू वेनस एंड मार्स इज कॉम्बिनेशन इज देयर, कैसे, मैं समझा इज नहीं देयर आपकी बात। इज देयर एनी प्रॉब्लम? वेनस मार्स इज देयर, ये कॉम्बिनेशन इज देयर और अकॉर्डिंग टू एज यू टेल, नहीं, उसमें क्या होगा, Venus- जब भी वीनस ऑपरेट करेगा तो इट विल नॉट फेवर the love marriage to happen, because it's not a suitable or favorable planet for the love marriage to happen. तो उस पीरियड में लव मैरिज नहीं होगा, यानी लव अफेयर तो चलेगा, मैरिज नहीं होगा। लव मैरिज फेल होने के चांसेस है? हाँ, अगर फेल होने के चांसेस है। फेल तो ऐसे नहीं होगा ना, फेल के लिए क्या चाहिए, 5th के लिए 4th चाहिए। ओए, अगर 4th होगा तो लव मैरिज फेल हो जाएगा। अगर 4th नहीं होगा तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है सूटेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है। दिस इज ऑल व्हाट वी कैन से, बट इट वुड नेवर मीन कि मैरिज नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर, यस सर। हाँ जी, आगे बढ़े, शुड आई प्रोसीड? ओके सर। किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट पे? नहीं है? ओके, Okay. now सर। now let us see that when the marriage for this lady is likely to happen. Now if you look at moon is present in the sign of Saturn. Moon is present in the sign of Saturn, which means a delay in marriage. Delay does not mean a long delay in marriage, means that there can be marriage cannot happen in the normal years of 20 to 23 years, the age for normal marriage. And if you look at Saturn, Saturn is present in the star of Moon. Okay, so there is a kind of Punarhu Yoga. And since Moon is present in the sign of Saturn and Saturn is present in the star of Moon, I can say that the marriage will happen only after she attains the age of 24 years or 25 years. Is it okay? Sir, 25 and 25 years, it is the normal नहीं, sir. नॉर्मल होता है 22 to 24 years.
अच्छा Normal 22 to 24 years. ओके सर ये 2000 की है ना, तो 22 to 24 years. आजकल जो चलता है नॉर्मल वो 30 years और 30 प्लस है. टाइम Sir, टू टाइम. sir, normal on what basis the normal is decided? Sir, it depends Normal- upon which year the birth took place. Suppose Sir, अगर ये birth जो- इसका 40s 50s में होता तो 18 years से start हो जाता है. 18 to 21 years, 22 years By generation, sir. by generation. और अगर इसको और आप 70s में ले जाओगे तो यही एज जो है 22 to 24 years, 21 to 23 years इस एज में आएगा. अगर इसको 80 90s में ले जाओगे आप तो वो 24 25 26 years. तो ये तो 2001 का मैरिज है, 2001 का बर्थ है, तो इसका मतलब इसका जो नॉर्मल भी हम लेंगे तो वो भी 24 years प्लस होगा. Sir, as you explained, sir, Kapil ji, हाँ जी बोलिए. sir, as you explained, so suppose 24 years the late marriage, as you tell, 1995 plus 24 is 2019 is supposed to get the marriage. हाँ जी. In 2019, 2024, 2023 आ गए ना सर. अब Too late इसमें marriage. हाँ लेट मैरिज बहुत ज्यादा है. 24 कौन सा 24 birth का ज्यादा है? है सर. नहीं, 24 नहीं, इयर्स का ज्यादा है ना सर. नहीं, बर्थ कौन से ईयर का है? 1995. Sir, 94 sorry, 90. okay. Oh, no, sorry, sir. This is not 2021. Sorry. ओके. Okay. Sorry, sir. This is another data. हाँ हाँ. अब इसका Okay. देखो डेट ऑफ बर्थ 2001 है. Yes, sir. 2001 में अगर हम 24 इयर्स भी ऐड कर दें 2025. तो ये बन जाएगा 25. 25. ओके. तो Okay. 25 का मतलब क्या है? दैट इज सुटेबल दशा फॉर द मैरिज इज जुपिटर. राइट? Yes, sir. एनी Yes, डाउट? sir. Jupiter is up to 2035. 35. So the marriage is likely to happen in this period. Yeah. Now let us check that which is the probable year where the marriage is likely to happen. So Jupiter is okay, right? Now the next question is selection of bhukti. So 21 has already gone. It means the suitable bhukti that can be Saturn, it can be Mercury, or it can be Ketu. Am I right? Right. Yes, sir. Because the time period of Jupiter has already gone. Yes, sir. So the suitable bhukti can be either Saturn, or it can be Mercury, or it can be Ketu. Now, if you look at the significations of Saturn, Saturn involves 5, 7, 11. It commits through 5, 7, 11, and finally confirms through 5 and 11. Means it is a strong significator for the love marriage changing into marriage. Is it okay? Okay. Now let us see the significations of Mercury. Mercury involves 5, 7, 11, commits through 5, and finally confirms through 5 and 11. Again, is a strong significator of love marriage. Let us look into Ketu. Ketu is involving 5 and committing through 5 and 11. Nowhere 7 is there. What does it mean? That during this period from 36 2026 to 6 2027, there can be continuation of the love affair but no marriage. इसका मतलब क्या हुआ? That we will now for the time being focus on only the bhukti of Saturn and bhukti of Mercury. हाँ जी, ये बात क्लियर है. Yeah. अब देखो जुपिटर का टाइम पीरियड निकल गया है. Okay, sir. हमारे पास सुटेबल भुक्ति या तो सैटर्न बन सकती है या मरकरी बन सकती है.
सैटर्न के सिग्निफिकेशंस देखें और मरकरी के सिग्निफिकेशंस देखें तो दोनों के सिग्निफिकेशंस बहुत अच्छे हैं। सैटर्न Saturn is a भी little stronger. सैटर्न भी फुलफिल है जी। Saturn is little stronger than Mercury. नहीं सर, नहीं सर, ये हम No, ऐसे sir, डिसाइड sir, नहीं कर पाएंगे। Mercury is ऐस- stronger. Mercury is stronger than Saturn, sir. No, sir. Saturn 7 are नो सर, antagonistic. सर मरकरी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है उससे। Mercury सैटर्न having, देखो, sir, Mercury सबसे बड़ा, look Mercury here, सबसे look बड़ा here, 9. look here. Mercury सबसे बड़ा 9 is there ना sir. Mercury में 7 is reflecting only at environment stage. At commitment and सर transmission, 7 is सर not ऐसे सर ऐसे हम स्ट्रेंथ नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हमारी भुक्ति लॉर्ड की सिलेक्शन के लिए 2 प्राइम कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करनी चाहिए प्लैनेट को, there. and if both the planet satisfies those conditions, then we have to look for the potential of the planets. Is it okay? Okay. Yes sir. Now let us first of all take Saturn into account. Saturn is co-ruler of 7th cusp, 7th sign lord. Is it so the first condition is okay, Okay. Yes. and Saturn is giving me a promise of 5, 7 and 11. Second condition is okay. Okay. It can be a Bhukti Lord. Now let us take the case of Mercury. Mercury, you know, is present in the star of Mars, and Mars is 7th cusp sub-lord. Yes sir. So the first condition is okay. 7th का star lord also. सर ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं। भुक्ति लॉर्ड को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? सेवंथ का कोरूलर हो। अगर सेवंथ का कोरूलर नहीं है तो उसका स्टार जो है, जिसके वो प्लेनेट जिसके स्टार में पड़ा है वो सेवंथ का कोरूलर हो। अगर ये कंडीशन भी हो, then it fulfills the first necessary condition to be a Bhukti Lord. Yes. We have discussed it number of times. Yes, sir. Now, if you take the case of Mercury, Mercury is in the star of Mars, and Mars is 7th cusp sub-lord. Right? Okay sir. And then at the same time, Mercury is also giving the promise of 5, 7 and 11. अब दोनों ही प्लेनेट 5, 7, 11 का प्रॉमिस दे रहे हैं। सैटर्न 7th का साइन लॉर्ड है, मरकरी 7 का सब लॉर्ड है, तो कौन सा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा? Mercury होगा सर। मरकरी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। Mercury stronger होगा। हाँ, मरकरी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। सब लॉर्ड स्ट्रॉन्गर। हाँ, Mercury is more stronger. What does it mean? That the marriage can happen only after March 2024, and it can happen between 25/3/2024 to 36/2026. Now, if I select Mercury as the Bhukti Lord, the next point is selection of Antara Lord. To do it, now what we will do is, we will go into the ephemeris and we shall check the transit of Jupiter, that whether the time period from 24 to 26, which is the time period in which the Mercury will be acting as a Bhukti Lord, is that time favorable for marriage? Is Jupiter moving in a sign that is favorable for marriage? Is it transiting in a star that is favorable for marriage? For this purpose, we will have to look into the ephemeris. Is this point clear, please? मैं directly भी जा सकता हूँ Antara Lord पे, but I would like to focus here upon the transit of Jupiter, because it's a period from 24 to 26. That is 3 years. So 3 साल के period में I'll have to see that which particular year is more favorable
for the marriage to happen. Sir, can we go directly select the Antara lot? हाँ, बाद में करते हैं, वो बाद में वो भी बताता हूँ, डायरेक्ट भी हो जाएगा. Okay. Now, if we look into the FE marriage, it is 25/3/2024, third month. So it is 25/3, 25th, 3, 25/3/2024. 2024. Now Jupiter is transiting in the sign of Aries, and Mars is the star lord as well as sub lord of the seventh cusp. It means the transit of Jupiter in the sign of Aries, that is absolutely fine, absolutely okay. Is it okay, please? हाँ जी, ओके है यहाँ तक. Yes, sir. Okay, sir. Okay. अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? ये साइन तो ओके है, लेकिन स्टार कौन सा है? Venus. Jupiter is transiting in Mars sign in a star of Venus, and if you look at the significations of Venus, Venus has a PS. It is 11th cusp sign lord. సార్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ప్రసాద్ సార్, కొంచెం మీరు किसी की पीछे से नॉइस आ रहा है. हाँ जी, शुड आई कंटिन्यू? ఓకే సార్. अब यहाँ पे देखो क्या है कि जुपिटर का ट्रांजिट एरी साइन में ओके, लेकिन वीनस के स्टार में ओके नहीं है. Here a question arises, then when Venus is a significator, why it is not okay? अब इसका आंसर देखो. वीनस की सिग्निफिकेशंस देखें अगर हम, तो वीनस 11th कस्प का साइन लॉर्ड है. जुपिटर के थ्रू, जुपिटर की 5th का वर्चुअल सब लॉर्ड है केतु के थ्रू, ये भी ओके हो गया. तो प्रॉमिस हमें 5, 7, 11 का मिल गया, राइट? ఓకే. But Jupiter, if you look at the significations of Jupiter, Jupiter is 6th cusp co-ruler, sign lord of 6th cusp. Am I right? And it is a star lord of 12th cusp. इसका मतलब 7th cusp जो इन्वॉल्व हुआ है, उसको जुपिटर जो है निगेट करेगा. निगेशन ज्यादा नहीं होगा, बट इट विल निगेट. ओके. अब फाइनल, हाउ टू नो, टू चेक इट आउट, वी विल प्रोसीड टू द फाइनल कंफर्मेशन to see that what final confirmation says. A final confirmation is through Saturn. Saturn is giving me 5, 7 and 11. And Saturn is also the 6 and 10. sub-lord of 6th cusp. 6 and 10. 6 and 10. So it means Venus is weak. Marriage to, I don't say कि Venus is denying marriage, but it is weak. Since it is weak, thereby this event will not happen as long as Jupiter is transiting in Aries in the star lord Venus, in the star of Venus. Is it okay, please? Okay, sir. Sir, you can say directly Venus having the four operation is there, na sir. 4 signification is there, na sir. Venus नहीं, having वो- the 4 significator is there. नहीं हम मैरिज तो डिनाई नहीं, इसको आप देखो, मैरिज तो डिनाई नहीं ना हो रहा.
मैरिज तो 7-11 का इन्वॉल्वमेंट, 5th से कमिटमेंट, डिनाई तो नहीं हो रहा ना, डिनाई तो नहीं हो रही ना मैरिज। One more thing, the 7 is not there in the commitment. In the 7 Venus. 7 is 7. तो 7 1, की 3, कमिटमेंट की 4, 8 is जरूरत there, नहीं sir. ना। देखो At इन्वॉल्वमेंट, least supportive का आप should be नहीं there. नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। इन्वॉल्वमेंट 7-11 का, कमिटमेंट 5 का, ओके है। इन्वॉल्वमेंट 5 का, कमिटमेंट 7-11 का, ओके है। Okay, sir. Okay. इन्वॉल्वमेंट 5-7-11 का, कमिटमेंट 5 और 7 और 11, ओके है। ये कहाँ लिखा हुआ है जो आप बता रहे हो? Nowhere it is written, and neither we have to follow like that. देखो हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है? 7-11 का इन्वॉल्वमेंट, 5th से कमिटमेंट, प्रॉमिस मिल गया ना हमें 5-7-11 का, तो मैरिज तो हो गई। अब इसमें Yes. अब इवेंट की बात कर रहे हैं हम। इवेंट तभी होगा अगर ट्रांजिट फेवरेबल होगा, और ट्रांजिट This event is particularly for the love marriage. नहीं 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 For the नहीं love ऐसा marriage, नहीं, ऐसा नहीं नहीं ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। हमने तो सिर्फ चार्ट से ये प्रेडिक्ट किया है कि इसका लव अफेयर चल रहा है। మూర్తి అంత దూరం ఎందుకు ఊకే ఆర్గ్యుమెంట్? సార్ చెప్పేదేమి, మూన్ వీనస్ ఈజ్ ఇన్ ది స్టార్ ఆఫ్ మూన్ 7 and 11 ఇన్ ది సబ్ ఆఫ్ జూపిటర్. జూపిటర్ 5 ఉంది, కానీ అక్కడ 6 and 12 ఉంది. మళ్ళీ ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ లో 5, 7, 11 ఉన్నప్పటికీ 6 and 10 ఉంది. అందుచేత అతను వీక్ అయిపోతాడు అని చెప్తున్నాడు. సార్ 6 మనం కన్సిడర్ చేయగలదు కదా, ప్రైమరీ గా 5 కదా, 5 కి 4 వస్తుంది కదా. ఏ మాట మాట్లాడతావు? ఈ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో 7 కదా ఉండేది వీనస్. నో సార్, ఇది ప్రైమరీ సార్, ఇది లవ్ మ్యారేజ్ కదా, లవ్ మ్యారేజ్ ప్రైమరీ గా 5 అరే కదా. అరే 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 सी लुक తలకాయ లేకుండా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అంతే. సార్ ముందే అడిగాను కదా మనం. नहीं नहीं आप सुनो सुनो, इसको आप कंफ्यूज कर रहे हो। हमने क्या चार्ट में प्रेडिक्ट किया? हमने चार्ट में ये प्रेडिक्ट किया कि सारे प्लैनेट्स फेवर कर रहे हैं लव अफेयर को। अब लव अफेयर का कन्वर्शन मैरिज में होगा कि नहीं होगा? मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, almost 8 planets, they are indicating that there is a love affair, and that love affair will change into marriage. Okay, the negation of love affair is only when 4 predominantly comes into action and 12 also comes into action. 4-12 होगा तो लव अफेयर मटेरियलाइज नहीं होगा। As long as Jupiter is transiting in Aries in the star of Venus, marriage will never take place. Yes, He marriage is will saying, not happen. You are It not is- listening. You are simply arguing. देखो हाँ, लव अफेयर है, लव अफेयर मैरिज में कन्वर्ट होगा, ये हम कह रहे हैं, हमारा चार्ट कह रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो कब कन्वर्ट होगा? तब कन्वर्ट होगा जब हमारे पास फेवरेबल टाइम आएगा। फेवरेबल टाइम कब आएगा? जब सन, मून, जुपिटर, सैटर्न का ट्रांजिट ओके होगा। ट्रांजिट कब ओके होगा? जब जुपिटर ऐसे प्लेनेट में ट्रांजिट करे, ऐसे साइन में ट्रांजिट करे, और वो साइन वाला ऐसे स्टार में ट्रांजिट करे जो बहुत स्ट्रांग हो। स्टार क्या देता है? इन्वॉल्वमेंट देता है। तो स्टार लेवल पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर स्टार लेवल पे बहुत स्ट्रांग होगा, सपोज यहाँ पे अगर मार्स के साइन में और मरकरी में ट्रांजिट करता, तो मैं कह देता यस इट विल हैपन। यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? ये क्वेश्चन नहीं है कि ये लव मैरिज को ये सिग्निफाई नहीं कर रहा है इसलिए हम कहेंगे लव मैरिज नहीं होगा। मैरिज तो कर रहा है ना सिग्निफाई। ये भी तो हो जाता है बहुत सारे केसेस में कि लव अफेयर होता है, वो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। लव अफेयर सक्सेसफुल नहीं होती। Whenever 4 and 12 will operate along with 5, love marriage will never succeed. Love marriage will never happen. Is this point clear? 4 के साथ 12 का आना बहुत जरूरी है। 8 भी आ जाए तो और सोने पे सुहागा, राइट? अगर 4, 8, 12 आ जाए तो फिर चांस ही कोई नहीं है। Is this clear? हाँ सर। कोई डाउट? आगे बढ़िए सब। चलो, तो मैं ये बात कर रहा था कि ये वीनस के स्टार में जो है, वीनस क्योंकि
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फेवरेबल नहीं है ज़्यादा, इसीलिए वीनस के स्टार में ये मैरिज नहीं होगा. ओके, so this event will not happen as long as Jupiter is in the star of Venus. Sign of Mars is okay, but in the star of Venus. Thereby, अब Venus कितनी देर रहेगा? Venus यहाँ पे रहेगा 26:40 तक, 26 डिग्री 40 मिनट्स. अब 26 डिग्री 40 मिनट्स में अगर हम जाएंगे तो दिस मीन्स दैट ऑन 18th of April it will move into sun star, and if you look at sun is involving 511, committing 5, 7 and 11, and final confirmation through 5 and 11. Okay हो गया? Okay. Okay, now here the next question is कि sun कब स्टार्ट हुआ? 18th को स्टार्ट हो जाएगा, 18/4/2024. And this, as long as Jupiter is transiting in the star of Sun, that time period will be favorable for the event. Now let us check it out कि Sun, Jupiter जो है Sun के स्टार में कब तक रहेगा. Is it okay? अब Jupiter Sun के स्टार में रहेगा 3 degrees 20 minutes यहाँ पे. It means 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक एरीज में, और उसके बाद क्या होगा 10 डिग्रीज टॉरस में. और 10 डिग्रीज टॉरस में अगर जाएं हम तो इट विल रिमेन इन द स्टार ऑफ सन राइट अप टू 13/6/2024. Venus sign है ना पूर्व. नहीं, आप इस बात को छोड़ो, आप प्लीज सारी चीजों को इकट्ठा करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा. Let us systematically try to understand it. टॉरस में जाएगा तो टॉरस मैरिज इनकार नहीं ना कर रहा. वीनस देखो आप, वीनस किसके स्टार में है? मून के स्टार में है. वीनस इन मून स्टार. नायडू जी, Yes sir. वीनस मून स्टार में है. Correct. मून 7th का वर्चुअल सब लॉर्ड है. Yeah. तो ओके हो गया ना. Okay. तो वीनस के अंदर ट्रांजिट करेगा तो भी ओके है. ट्रांजिट में हम क्या करते हैं? Jupiter has to transit into a sign which is a co-ruler of 7, or it has to transit into a sign whose star lord is a co-ruler of 7. अगर ये दोनों कंडीशंस में कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है, then the transit of Jupiter in that particular sign is absolutely fine. Is this point clear? नायडू जी, ये बात क्लियर है? क्लियर है, बट तो 7th कोरोलर में नहीं है ना, नाइदर वीनस नॉर मून. मून क्यों नहीं है सर? मून 7th में बैठा नहीं हुआ. 7th कोरोलर सैटर्न, मार्स, राहु. सर मून 7th में है नहीं. Yeah. Moon is posted in 7, Occupied, yes. and Venus is in the star of Moon. Correct. Any planet which is at the star level, its position is also taken into account. Yeah. The virtual SSL. वर्चुअल SSL हो गया ना. फिर हो गया. कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ना. Right. इसका मतलब क्या हुआ कि 18/4/2024 से लेकर 13/6/2024 के टाइम पीरियड में जो जुपिटर है मार्स के साइन में, टॉरस के साइन में ट्रांजिट करेगा और सन के स्टार में ट्रांजिट करेगा, विच स्ट्रांगली फेवर्स द लव मैरिज टू हैपन. हाँ जी, ओके. अब इसका मतलब हमने टाइम पीरियड निकाल लिया कि 18/4/2024 टू 13/6/2024 के बीच में हमारा जो ट्रांजिट है वो इस मैरिज को फेवर करता है
subject to condition that the transit of Saturn as well as the transit of Sun, that also favors. अब हम again we move to the same point, and it is 18/4/2024. 18/4/2024. Now look here. Sun is transiting in which sign? Aries. Aries sign. Aries sign favorable है? Yes, Yes, sir. sir. जब जुपिटर के लिए फेवरेबल है तो इसके लिए भी फेवरेबल होगा ना. होगा. लेकिन सन किसके स्टार में ट्रांजिट कर रहा है? केतु. केतु. और केतु के सिग्निफिकेशंस देखो, 5 को इन्वॉल्व करके 5/11 से कमिटमेंट दे रहा है. शादी होगी? नहीं होगी. नहीं होगी. नहीं होगी. यहाँ 7 ही नहीं. 7 नहीं है ना. हाँ. अब केतु के स्टार में कब तक रहेगा ये? 13 डिग्रीज 20 मिनट तक. 13 डिग्रीज 20 मिनट तक. यानी केतु के स्टार में ये रहेगा 27 तक. ओके. ओके सर. और 27 के बाद फिर केतु से निकल के कहाँ जाएगा? वीनस स्टार में. और वीनस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फेवरेबल नहीं है. Am I right? Yes, sir. तो वीनस के स्टार में कब तक रहेगा ये? ये रहेगा 26 डिग्री 40 मिनट्स. यानी सन के स्टार में सन कब जाएगा? 12 मई 2024. Am I right? Yes, sir. अब इसका मतलब हमारे पास टाइम पीरियड और छोटा हो गया. पहले टाइम पीरियड था 18/4/2024 टू 13/6/2024. अब 18/4 से बढ़कर टाइम पीरियड हो गया 12/5/2024 टू 25/5/2024. Am I right? Right, sir. इसका मतलब जो मैरिज है इस पीरियड में होगा. तो इस पीरियड में होगा, यानी 12 मई के बाद 25 मई से पहले, विच मीन्स ये 13 डेज के अंदर मैरिज की पॉसिबिलिटी है. हाँ जी, इज दिस पॉइंट क्लियर? क्लियर, बट स्टार्टिंग में ये मैरिज डिलेड मैरिज है बोल के 24 तो डिले हो गया ना सर. डिले कहाँ हुआ? 23 ईयर्स एज में हाँ, तो मैरिज कोई हुआ बात है. नहीं. अब देखो, ऐसा है कि हम तो अपनी तरफ से प्रेडिक्शन देते हैं, हाँ, ठीक. हम तो चेक करते हैं, लेकिन अगर ट्रांजिट सूट करेगा, कई बार आप क्या देखोगे, in most of the cases you will find that Dasha Lord is giving, Bhukti Lord is giving, Antara Lord is giving, Sukshma Lord is giving marriage, Prana Lord is giving marriage, yet the marriage does not happen. Yes. क्योंकि ट्रांजिट फेवर नहीं करता. Okay. Okay, sir. In the present case, the transit is favoring, and when the transit is favoring, we cannot say that the marriage cannot happen. Sir, also another thing we have to consider is the person has asked a question. Yes. So that means the possibility of the marriage Yes. Yes. is Yes. 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 May 2024, very strong possibility. हाँ जी. मैं I'll be back in a minute. Yes.
हाँ जी, क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर है सर। राइट, तो ये जरूरी नहीं होता, ट्रांजिट पे भी डिपेंड करता है। कई बारी ट्रांजिट जो है बहुत पहले इतना स्ट्रांगली फेवर करता है कि मैरिज हो जाता है, सब्जेक्टिव कंडीशन की दशा भुक्ति और अंतरा भी फेवर करें। यहाँ पर दशा भुक्ति अंतरा फेवर करें, ट्रांजिट फेवर नहीं करे, मैरिज नहीं होगी। ट्रांजिट फेवर करे और दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म प्राणा भी फेवर करें, मैरिज होगी। ट्रांजिट फेवर करे और दशा भुक्ति अंतरा जो है वो फेवर नहीं करें तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है मैरिज की, बट इन सर्टेन केसेस मैरिज डज हैपन। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है। आगे प्रोसीड करें। तो Yes, हम sir. बात कर रहे थे वहां पे, तो हमने इस टाइम पीरियड को और शॉर्ट कर लिया। इट इज 12th of May 2024 to 25th of May 2024। Am I right? इस पीरियड में अंतराल कौन है ये सब? अब वही चेक करना है हमने। अब हम मरकरी की भुक्ति को देखें तो हमारे पास है 12/5 Mercury. 2024 to 25/5 2024, तो मरकरी अंतरा बनेगा। मर्करी स्ट्रांग है। मरकरी स्ट्रांग है। अब मरकरी अंतरा क्यों बनेगा? देखो, मरकरी थ्रू मार्स इज ए कोरूलर ऑफ 7 सब लॉर्ड। मरकरी is giving a promise of 5, 7 and 11. Is it fine? And it is a strong significator of marriage. Is it okay? ओके सर। अब सूक्ष्म लॉर्ड कौन सा बनेगा? तो हमारे पास टाइम था 12/5 2024 to 25/5 2024. So we have 3 Sukshma lords. One is Sun, other is Moon, and the third one is Mars. So as per rule, which will be the strongest Sukshma lord among Sun, Moon and Mars? Sun is not co-ruler of 7. Neither its star lord is co-ruler of 7. Sun gaya. गया। Moon is not a co-ruler of 7, but Moon is present in the star of Mars. Mars is 7th sub-lord. Am I Yes, sir. right? राइट सर। And Mars itself is 7th sub-lord. अब देखो यहाँ पे मून ने मार्स के थ्रू रिजल्ट देना है। Am I right? राइट सर। तो हम सीधा मार्स ही क्यों ना लें? मार्स इज डायरेक्ट कोरूलर। हाँ, डायरेक्ट को रूलर। मून इनडायरेक्ट को रूलर बना है, मार्स डायरेक्ट को रूलर बना है। इसका मतलब मार्स Mars- will be the suitable Sukshma lord. करेक्ट। So the marriage now will happen between 22nd of May to 29th of May 2024. Not Okay. only that, sir, Moon is in the star of Mars 5, 7, 11, but sublords Moon. हाँ, Moon. वो भी कह सकते हो, लेकिन चलो हाँ. उस पॉइंट पे इसलिए फोकस नहीं करते मूर्ति जी, बिकॉज थर्ड का स्टार लॉर्ड है मून। हाँ. थर्ड का स्टार लॉर्ड है, इसीलिए उस पॉइंट पे फोकस नहीं किया। क्योंकि थर्ड का स्टार लॉर्ड नहीं होता ना, फिर तो हम कह देते मून देखो फर्स्ट का साइन लॉर्ड है, थर्ड का स्टार लॉर्ड है, और मून नेगेटिव कस्प में नहीं है, 6 में नहीं है, 12 में नहीं है, इसीलिए मून ओके है। और मून वैसे देखें तो वर्चुअल सब लॉर्ड है 7th का, तो इसलिए मून भी बन सकता था, लेकिन मून मार्स के थ्रू बनता। और मार्स डायरेक्ट है, 7th का सब लॉर्ड है। So Mars is the co-ruler. Mars is the Sukshma Lord. Then what about the Prana Lord? Which can be the Prana Lord? Now the next Prana Lord is Rahu. Mars भी satisfy कर रहा है Prana Lord बनने की,
राहु भी सेटिस्फाई कर रहा है पुराना लॉर्ड बनने की. If you look at the planets, all the planets are giving a promise of 5, 7 and 11. So we have to compare the potential. अब इसमें एक ही बेसिस है हमारे पास. मार्स लेंगे अगर हम तो मार्स भी बन सकता है क्योंकि 7th का सब लॉर्ड है. एंड एट द सेम टाइम राहु इज आल्सो इक्वली स्ट्रांग बिकॉज 7th का सब लॉर्ड है. राहु नहीं बनेगा, मार्स ही बनेगा. Rahu will not be the Prana Lord because Rahu is present in the star of Saturn. It is present in the star of Rahu. Rahu club हो जाएगा तो it is present in the star of Saturn, which is 5, 7, 11 along with 6 sub-lord, sub of Jupiter, which is fifth virtual sub-lord along with 6 and 12, and in the sub of Sun, which is also 6 and 12. मार्स इज अच्छा रहता सर. मार्स ठीक रहेगा सर. Mars is fifth Rashi Lord as well as seventh sub Lord. करेक्ट. So Mars is stronger. मार्स इज स्ट्रॉन्गर. तो 23rd को जो है दैट इज द जुपिटर मेर्क्यूरी मार्स. हाँ सर देखो ये सारे ही सूक्ष्म जो है मार्स को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते ना पुराना को, बिकॉज मार्स को अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई निगेशन नहीं है. मार्स मरकरी के स्टार में है, सन के सब में है और मरकरी के सब में है. मरकरी के स्टार में, मरकरी के सब में 511 वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग. Sir, Mars seventh का Star Lord and seventh का sub Lord. नहीं मार्स मैं तो आई एम सिंपली फोकसिंग मार्स जो है इन्वॉल्वमेंट तो 5, 7, 11 है, कमिटमेंट 11 से है, एंड देन फाइनल कंफर्मेशन इज अगेन बाय 5 and 11. हाँ वो तो ठीक है. The other way also Mars seventh का सब लॉर्ड है as well as sub Lord. हाँ. Mars fifth का Rashi Lord and sub Lord. And Mars 11th का Star Lord and sub Lord. हाँ. So 5, 7, 11 में है दो दफा मार्स आया है. हाँ ऐसा भी कह सकते हो, बट यहाँ पे तो वील सिंपली फोकस दैट मार्स इज 7th का सब लॉर्ड एज वेल एज 7th का स्टार लॉर्ड. Yes. It is star lord as well as sub lord, so it is pretty strong. So So can the we marriage check is the, likely to happen on 23rd, maybe around that time. yes. So can we check the progression, moon progression? मून में इसमें ट्रांजिट कह रहे हो आप? हाँ नहीं, यस sir. यस. Progression, sir. हाँ बताएंगे. अब इसमें देखें अगर हम तो ये डेट ले हम, Because sir, progressed moon is in Jupiter. इसलिए मैंने पूछा. प्रोग्रेस मून इज इन जुपिटर. Yes, sir. तो जुपिटर दे रहा है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर. हाँ मार्स ओके. मार्स में मून अगर जाएंगे तो इट विल बी इन द लास्ट वीक ऑफ मे. Okay, let me check it out. So the date is ट्रांजिट में देखें ना इसको पहले तो. ठीक है सर. ट्रांजिट में चेक कर लेना. ट्रांजिट में है यस 23rd 5 2022. टाइमिंग्स कोई भी रख लेते हैं. मून का देखें अगर हम, मून का स्टार लॉर्ड सैटर्न है. यस 7th कस्प का सब लॉर्ड मार्स है. यस कंफर्मिंग Okay. मार्स. हाँ
मून का स्टार लॉर्ड होना चाहिए हमारे पास। सैटर्न है और यहाँ पे 7th मार्स है, तो सैटर्न मार्स का रिलेशन होना चाहिए। यस सैटर्न मार्स का नहीं है सर। नहीं है, सैटर्न मार्स का रिलेशन नहीं है। 24th करके देखिए सर। हाँ, इसमें चेंज कर देंगे फिर आप। तो ये सैटर्न से जाएगा नेक्स्ट, मरकरी चेक कर लें, या इससे पीछे ले जाएं तो जुपिटर हो मेर्क्यूरी जाएगा। करो सर, मेर्क्यूरी चेक करते हैं सर, जुपिटर का मार्स से रिलेशन है सर, इससे पहले होगा टाइम। ये टाइम होगा सर, 22 को कोई भी टाइम हो सकता है ना। हाँ 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 जुपिटर आ गया ना सर, हाँ। और जुपिटर जो है इट इज इन रिलेशन विद मार्स। जुपिटर इज प्रेजेंट इन द स्टार ऑफ मार्स। Yes, sir. Of course, if we remove that Saturn, in the place of Saturn, if we keep Mercury, वो भी कर Mercury सकते is हैं। also in the Saturn. हाँ सर, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते मर्क्यूरी इज हैं अ सर। बेटर चॉइस है। 24 मरकरी भी कर सकते हैं सर। 24 को जाइए सर। मरकरी भी कर सकते हैं, बिकॉज स्टार लॉर्ड हमारे पास वो होना हाँ, चाहिए हाँ, जो आगे सर जुपिटर भी रख सकते हैं, मरकरी भी रख सकते हैं, मून भी रख सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। कोई भी रख सकते हैं सर इनमें। Yes, because there are periodical laws. yes They have become periodical laws. yes So कोई भी रख सकते हैं, कोई भी रख they are सकते eligible. हैं। they are all okay। Okay. Next. हमने तो What? सर टेंटेटिव डेट निकाली है, सो इट इज 22nd एंड 23rd। इसके बीच में कोई भी टाइम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशन। 22nd, 23rd. 22nd, 23rd, 24th भी हो सकता है, 24th भी हो सकता है सर। और 24th भी हो सकता है ना। राहु इज इक्वली गुड। Rahu, no use, sir. सर राहु में ये है ना, राहु में सिर्फ 666 का No use, sir. इन्वॉल्वमेंट है, नेगेशन ज्यादा है, 6 निगेशन ज्यादा है, तो इसीलिए 6 पहला ही टाइम थी। 22nd, 23rd ओके है। हाँ 22nd, 23rd इज ओके। ठीक है सर। सर अब एक बार ट्रांसिट बताओ सर। ट्रांसिट चार्ट अभी टाइम कैलकुलेट नहीं ना किया मूर्ति जी। अरे टाइम के वास्ते टाइम कैलकुलेट नहीं किया ना। आप टाइम के लिए देखो क्या है यहाँ पे हमारे पास। क्या आया था? सन की साइन में है, ओके है। हाँ सन के साइन में है, ओके है, क्योंकि कैलकुलेट सारे प्लैनेट्स दे रहे हैं ना। मून मार्स के साइन में है, ओके है। जुपिटर मार्स के साइन में है, ओके है। सैटर्न के साइन में है, ये भी ओके है। हाँ ये सारे ही ओके हैं सर। अब देखो, कैलकुलेट नहीं कर रहा ना सर। अब यहाँ पे सन जो है केतु के स्टार में है, ये हम चेंज नहीं कर सकते। केतु को चेंज करना नहीं कर सकते सर। नहीं सर, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट। सर केतु वीनस मार्स है ना, हम मार्स रख लेंगे यहाँ पे। केतु इज वीनस एंड मार्स सर। हाँ राइट Sir, we are checking for 24th. No, it is, we are checking for 22nd 22nd कैलकुलेट कर दो सर फर्स्ट। 22nd के बाद। नहीं आप तो सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि सन इज इन साइन ऑफ सन साइन, ओके राइट, इट इज ओके। सर मून इज ट्रांसिट चार्ट आज का है सर। हाँ नहीं सर, अरे नहीं सर सर, आज क्या? कैलकुलेट कर दो सर फर्स्ट। या अच्छा कैलकुलेट नहीं किया था मैंने। अब ओके हाँ अब ओके हो गया। वो तो आज का था, आज का चार्ट ओके था वो। अब यहाँ सन इज इन वीनस साइन, ओके। मून इज इन वीनस साइन, ओके। ओके जुपिटर इज इन वीनस साइन, ओके। सैटर्न इन सैटर्न साइन, ओके। ओके सन इन सन स्टार, ओके। हाँ सन इन केतु सब ये चेंज कर सकते हैं हम। सन इन केतु सब, सन इन राहु सब ये भी चेंज कर सकते हैं। मून इन जुपिटर स्टार, ओके।
जुपिटर सब ओके, वीनस सब ये चेंज करना पड़ेगा। हम्म, अब केतु सब अगर चेंज करेंगे हम तो केतु बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। केतु सब केतु बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा सर। वीनस आ गया। ओके ओके वीनस वीनस की जगह सन ले आए सर, ज्यादा अच्छा होगा। वीनस भी ओके है। नहीं सर, केतु है, केतु को हटाना। हाँ केतु को हटाना है सर, वो अभी टाइम चेंज कर रहे हैं ना, आवली रखा हुआ था ना वो, ये वीनस आ हाँ गया। ओके ओके ये टाइम आ जाएगा सर। इसकी जगह वीनस की जगह अगर सन ले आए तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ हाँ सन ले आए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। ये वही रखना पड़ेगा सर, वीनस ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सन का स्टार मून में चेंज हो जाएगा, तो हमें यहाँ वीनस ही रखना पड़ेगा। हाँ। वीनस किस टाइम पे आया था सर? ट्वेंटी थर्ड। हाँ नहीं अभी हुआ नहीं सर। ये ओके दया हाँ नाउ नहीं नाउ सर, इट्स ओके। आ जाएगा सर अभी। हाँ वीनस 57 वीनस वीनस 57 मिनट्स था ये। ओके, अब ये वीनस के सब को चेंज कर देंगे हम, और यहाँ पे केतु को चेंज करना पड़ेगा। पहले वीनस सब कुछ चेंज करेंगे। ना केतु को, केतु हाँ सब। ओके ओके ये हो गया। वीनस हो गया, वीनस वीनस, अब ये दोनों चेंज करने पड़ेंगे। तो वीनस वीनस की जगह हम इसको मरकरी में ले आए, इधर मरकरी और जुपिटर। सन का सब लॉर्ड चेंज करें।
सन ओके हो गया सर, मून का सन आया। ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। सन इधर मर्क्यूरी। हाँ, अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। यहाँ मरकरी, जुपिटर मार्स मरकरी है ना सर, हाँ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। हाँ 22 को 1913। इधर सैटर्न ट्रांसिट, सैटर्न भी ओके 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 है सर, सैटर्न ओके का है, देखो, ओके है, ओके सैटर्न जुपिटर मरकरी या मरकरी, ओके जुपिटर भी ओके है, ओके, वीनस हाँ। सन सैटर्न जुपिटर, ओके सर। ये ओके हो हाँ। गया। ये वैसे भी सर बाहर जो मैरिज है वो इवनिंग में होती है या आफ्टरनून में होती है? ये चार्ट जो है वो रेनॉल्ड्सबर्ग का है ना, यूएस का, हाँ तो उसमें मैरिज ही होती इवनिंग टाइम पे है, 4 o'clock के आसपास, 4, 5, 6 के आसपास। रहेगा। क्रिश्चियन मैरिज होती है ना सर, क्रिश्चियन मैरिज तो इस टाइम होती है। नहीं नहीं, हमारा हिंदू। अच्छा, हिंदू है, ठीक है, हाँ ओके ओके ओके। फिर तो इस टाइम के बाद कोई भी हो सकती है, फाइनल एडजस्टमेंट अगर करेंगे तो हो जाएगा। सर 14 मिनट्स नहीं तो 15 बनाओ इसे। सन की 19 सर ये 1914 सन की जगह मार्स ले आए यहाँ पे, और बढ़िया हो जाएगा। हाँ 1914 रखो, 14 नहीं तो 15। हाँ वो क्या था देखेंगे। कुछ नहीं आएगा सर, चेंज नहीं होगा। हाँ 15 आप देखो, नो चेंज। नो चेंज सर। हाँ नो चेंज। ये सर सन को चेंज करने के लिए हमें सन को अगर हम सन को मार्स में कन्वर्ट कर लें, मून एंड मार्स, सन को मून और मार्स में चेंज करें, चेक करते हैं। ये आ गया मार्स मार्स मार्स। अभी जरा ये आ गया सर। हाँ मार्स। सर इसमें एक पॉइंट, ये जो सभी ट्रांसिट वी आर सीइंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ओहियो, मैरिज ओहियो में होगा, इंडिया में होगा? ये तो पता नहीं जी, नो आइडिया। मूर्ति जी बताइए। मार्स चेंज हो गया सर, बढ़िया हो गया। हाँ ये सैटर्न चेंज हो गया है, इसके लिए कम टाइम चाहिए, चेंज हो जाएगा। सैटर्न मरकरी में चेंज हो जाएगा और राहु जुपिटर में चेंज हो जाएगा। This transit is relating to that place, United States Ohio. शादी ओहियो में होगा, इंडिया में होगा, that is the point. ये तो मूर्ति जी बताएंगे। no no no, that girl was born there. उधर ही होता सर, नो कनेक्शंस टू इंडिया। मूर्ति जी ये देखो, ठीक हो गया ट्रांजिट। सन देखो, वीनस सन, वीनस मार्स। हाँ मून देखो, मार्स सैटर्न मरकरी मरकरी। हाँ और जुपिटर देखो, वीनस सन मरकरी मरकरी। और उसके बाद सैटर्न देखो, सैटर्न जुपिटर मरकरी मरकरी। हाँ। तो ये टाइम हो गया 23/5/2024 3:57। नहीं सर, सैटर्न मार्स को रिलेशन नहीं है बोल के बोल दिया ना आप। अच्छा, सैटर्न का रिलेशन नहीं है, वो भी चेक करना, और हाँ, वही चेंज करना पड़ेगा। 7th का सब लॉर्ड सैटर्न मार्स है ना। मार्स को रिलेशन नहीं। हाँ मार्स का रिलेशन नहीं बनेगा ना इसलिए सर सैटर्न से, इसलिए वो जुपिटर रखना पड़ेगा। हाँ रखना पड़ेगा। 1915 को आता सर वो सब भी। एक दिन पीछे करना पड़ेगा, अब हो जाएगा ओके। हाँ जुपिटर से बनाया। हाँ अब केतु चेंज करना पड़ेगा यहाँ चेंज पर। करना।
केतु चेंज नहीं होगा यहाँ पे, कितने आवर्स लगेंगे, तो वही अगली डेट चला जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर प्रोग्रेशन भी मिलाना पड़ेगा ना, वो भी तो देखना पड़ेगा, प्रोग्रेशन भी देखना पड़ेगा। ये मून में केतु आया, अब वो चेंज करना पड़ेगा। ये वही आ जाएगा टाइम जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। 22 को 19 1915 रखो साहब, देखेंगे। हाँ 1915 रखा था। हाँ 15 रखा, तो ये मार्स 7th का सब लॉर्ड मार्स इधर जुपिटर टैली होता ना। हाँ जी सर, हाँ जुपिटर तो टैली होता है सर। देखो जुपिटर इज इन द स्टार ऑफ मार्स, हाँ so it is tallied. हाँ जी सर। Next, let us check sublord of ascendant Venus with Jupiter. हाँ जी, Jupiter, Venus is in the sub of Jupiter. Venus is in the sub of Jupiter. कहाँ है? नेटिव में, नेटिव चार्ट में। नहीं इधर ट्रांसिट। हाँ इधर देख लो, ट्रांजिट में देख लो। ट्रांसिट में स्टार लॉर्ड सन है, स्टार लॉर्ड सन है सर, दोनों का स्टार लॉर्ड सेम है ना, कनेक्टेड है। Jupiter is in the star of Sun, Venus is also in the star of Sun. Both are connected. That it is okay. It's okay. It's Third planet connection. Connection. It's okay. Okay हो गया सर? Yes, this is correct. Let us check progression, sir. हाँ, प्रोग्रेशन चेक कर लेते हैं। एक बार क्या है, 10 मिनट में हो जाता, ले परवाह नहीं। प्रोग्रेशन में इसका टाइम हमने क्या रखा हुआ है? 1915 22nd डेट, 22nd 5 2024 1915 15 ओके। हाँ कैलकुलेट वो हाँ राइट। ओके सर, जुपिटर मरकरी अब हमने इसी में देखना है। हाँ असेंडेंट को रूलर्स, ये पहले ये देखो सर, सन देख लो सर। हाँ असेंडेंट कस्प को रूलर्स शुड बी द सिग्निफिकेटर्स ऑफ रेलेवेंट कस्प। हाँ जी, इन नाटल चार्ट। हाँ ये तो है ना सर, सारे प्लैनेट्स है ना नेटल चार्ट में। सन है, वीनस सारे हैं सर, वीनस है, जुपिटर, सैटर्न, ओके। हाँ सारे ओके हैं। ये प्राण तक देखना सारे। हाँ सारे, मार्स ओके है, मून ओके है। राइट। देन नेक्स्ट वो उसमें देखो ऊपर, ये जुपिटर, मेर्कुरी, मार्स इसमें वो किसमें मून देखना है? का स्टार लॉर्ड DBASP। हाँ वो अब मून देख लो ना सर। हाँ। अब इसमें देखो सर, मून जुपिटर का देख। मून जो है वो सैटर्न है। ओके नहीं फर्स्ट यू हैव टू सी जुपिटर ना सर। जुपिटर से देखना सर। जुपिटर हाँ। से स्टार लॉर्ड विल बिकम दी दशा लॉर्ड। हाँ दशा करेक्ट। भुक्ति अंतरा प्राणा सूक्ष्म लाइक दैट। हाँ यही तो है सारे यहाँ पर। जुपिटर में जुपिटर सैटर्न राहु देख लेंगे सर। हाँ ये इसमें देखना सर। जुपिटर सैटर्न राहु 5 जुपिटर सैटर्न राहु काదండి।
पहले तो Good. जुपिटर मरकरी मार्स देखेंगे ना, जुपिटर मरकरी मार्स और नहीं मार्स। सर, जुपिटर जुपिटर का जुपिटर, मेर्कुरी, मेर्कुरी, मार्स, मार्स। हाँ यही तो देखेंगे। ये ठीक है सर। जुपिटर जुपिटर इसमें जुपिटर सैटर्न राहु है ना हाँ सर? वो तो बाद में चेक करते हैं ना, पहले तो यही हाँ। देखेंगे ना। दशा लॉर्ड जुपिटर है और जुपिटर जो है जुपिटर सैटर्न हाँ राहु है। हाँ हाँ, ठीक है, आप जुपिटर देखो 5 है, 5 में जुपिटर है। देखो 7 है, जुपिटर हाँ। 11 है। ओके, हाँ, वो पहली था। कंडीशन हो गया पूरा। हाँ उसके हाँ बाद सैटर्न देखो, सैटर्न देखोगे आप तो सैटर्न जो है हमारे पास 7 में है। ओके, हाँ और राहु देखो आप, राहु 5 में है। ओके, राहु 7 में है, राहु 11 में है। ओके हो गया। हाँ। उसके नेक्स्ट बाद मरकरी मरकरी देखो आप, मरकरी जुपिटर सैटर्न मरकरी है। जुपिटर आप हाँ, चेक कर चुके हैं, जुपिटर 5 है, 7 11। सैटर्न भी है, सैटर्न भी है, मरकरी भी है, मरकरी भी मरकरी देख भी लो, है। मरकरी भी है। हाँ, हाँ है। नेक्स्ट ओके, मरकरी देख लो आप, मरकरी मरकरी। हो गया ना, हाँ, मार्स। मार्स हाँ। देखो। उसके बाद देखो आप मार्स देखो, आप मार्स। मार्स देखो, वीनस मून वीनस है, वीनस मून वीनस है, वीनस 5 है। हाँ, ओके, वीनस 5 है और वीनस 7 नहीं है और वीनस 11 नहीं है और मून मून है। मून मून है। 11 है, मून 11 है, 5 ओके, 11 है। ओके, ओके इट्स ओके सर। ओके ओके। और उसके बाद बस हो गया, हो गया। हो गया। अब ये सारे प्लेनेट देखोगे सब मिलेंगे आपको। अगर टाइम पीरियड ओके होगा तो सारे प्लैनेट्स मिल जाएंगे। सन देखो, सैटर्न मून मार्स है। हाँ, सैटर्न देखो 7 है। हाँ, yes, sir. मून देखो 11 है। ओके, और मार्स देखो 5 है। मार्स देखो 7 है। ओके, हो गया। अब मून देख लो, जुपिटर मरकरी मार्स है। जुपिटर 5 7 11 है, मरकरी 11 में है। ओके, और मार्स देख लो, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 5 में है। मार्स देख लो, हम कर चुके हैं डिस्कस, वीनस मून वीनस। मरकरी हम कर चुके हैं डिस्कस, जुपिटर सैटर्न मरकरी। जुपिटर हम कर चुके हैं डिस्कस। उसके बाद वीनस देख लो, राहु सैटर्न केतु। राहु देखो 5 है, राहु 7 है, राहु 11 है। ओके, और सैटर्न देखो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 7 में है। और केतु देखो, अब केतु इसमें आपको नहीं मिलेगा, ना 5 में मिलेगा, ना 7 में मिलेगा और ना 11 में मिलेगा। केतु इज मार्स एंड मरकरी, हम कर चुके हैं डिस्कस। मार्स भी 5 में, मरकरी 5 11 में। ओके, ठीक है। अब इसके बाद वीनस के बाद सैटर्न देख लो, राहु मरकरी सैटर्न। राहु कर चुके हैं डिस्कस, मरकरी कर चुके हैं, सैटर्न कर चुके हैं। राहु 5 7 11, मरकरी 5 11 और सैटर्न 7 7 11 7 5 5 7 है या 7 है, अकेला 7 है सैटर्न। देखो, सैटर्न राहु है, राहु इज 5, राहु इज 7, राहु इज 11. Okay, हाँ, then Mercury is 5 and Mercury is 11. Okay, हाँ, then it is Saturn is 7. हाँ, Okay हो गया। उसके बाद राहु चेक कर लो, मून राहु सैटर्न। मून 7 है, राहु 5 7 11 है और सैटर्न 7 है। फिर केतु देखो, मरकरी वीनस राहु है, मरकरी 5 11 है और वीनस जो है हमारे पास 5 है और राहु जो है 5 7 11। ठीक है सर। सारे मिल जाएंगे। अगर टाइम पीरियड ओके होगा तो सब मिल जाएंगे, प्रोग्रेशन पास हो जाएगा। ओके, ओके सर, इसमें 7th कस्प, प्राइमरी कस्प, कोर रूलर्स भी चेक करना ना? वो भी कर लो सर, सब मिल गए। हमने तो सारे प्लेनेट ही चेक कर लिए सब भी हो गया सर, हम सारे प्लेनेट कर लिए ना, सन हाँ, से लेके केतु तक सब चेक कर लिए। ऑटोमेटिकली दे विल कम। हाँ, दे विल कम। राइट, ठीक है जी। वेरी गुड सर। और बोलो जी, आपको क्वेश्चंस है तो वो पूछो, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। अब क्वेश्चन पे फोकस करें।